Hello students. Today's video is a continuation of the previous session, that is chapter 1 part 1, and today's video is part 2. आज का ये वीडियो पिछले सेशन का part 2 है. In this video I'll be reading out few more paragraphs to you. आज के सेशन में मैं आपके लिए कुछ और paragraphs पढ़ूंगी and then I'll explain the summary of these paragraphs to you. उसके बाद मैं इन paragraphs के summary आपको explain करूंगी. And like last video, पिछले वीडियो की तरह in today's video as well, I'll be giving out few words and their meanings to you. आज के इस वीडियो में भी आपको मैं कुछ words और उनके मतलब बताऊंगी. And in the end you'll be given few homeworks and वीडियो के end में आपको homeworks दिए जाएंगे. So let's begin with this paragraph right here. Yes. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. So this was the paragraphs. Now we'll see what all words I have pointed out for you. Okay. So अभी तक जितने भी paragraphs मैंने पढ़े हैं उन सभी से जो words मैंने निकाले हैं उनको यहाँ पे mention किया गया है. So ये जो page है वो आपको WhatsApp पे share कर दिया जाएगा. Okay. So you can always refer if you want to know the meaning of any words. So in the paragraph that I just read, जो paragraph मैंने अभी पढ़ा है उनमें पहला word है satisfied. Okay. So the first word is satisfied. Now what is the meaning of satisfied? Satisfied का मतलब क्या है? Satisfied का मतलब है संतुष्ट होना. This word is in Hindi. ये वर्ड हिंदी में है. सो इन हिंदी सेटिस्फाइड इज नोन एज संतुष्ट. हिंदी में सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट होना. एंड इन इंग्लिश यू कैन रिफर इट एज प्लीज्ड. ओके. इंग्लिश में सेटिस्फाइड का मतलब है प्लीज्ड. सो एज एन एग्जाम्पल आई हैव मैंशनड अ सेंटेंस हियर. एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस मैंशन किया है. The teacher was satisfied with his students' results. इस सेंटेंस का मतलब है कि टीचर अपने स्टूडेंट के रिजल्ट से खुश था या संतुष्ट था. ओके. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ड्रेप्ड. जो दूसरा वर्ड है वो है ड्रेप्ड. ड्रेप्ड का मतलब है ढाकना या कवर करना. ओके. सो ढाकना का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किसी भी चीज़ से अगर आप ढक दो सो आप उसको ड्रेप करना बोल सकते हो. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल एलेक्स ड्रेप द बॉक्स विथ अ ओके जस्ट अ मिनट. सो एलेक्स ड्रेप्स द बॉक्स विथ अ क्लॉथ. सो इसका मतलब है एलेक्स ने बॉक्स को एक कपड़े से ढक दिया. So let's move on to the next word. The next word is hailstones. तीसरा word है hailstones.
अब हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले। जब बारिश के साथ बर्फ़ के जो पत्थर गिरते हैं उनको हम हेलस्टोन्स बोलते हैं। ओके, एंड इन इंग्लिश द मीनिंग ऑफ हेलस्टोन्स इज़ स्मॉल बॉल ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन फ्रॉम द स्काई। सो जब बारिश के साथ बर्फ़ के पत्थर गिरते हैं तो उनको हम हेलस्टोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, roofs and windows in our area were damaged by hailstones. सो इस सेंटेंस का मतलब है हमारे एरिया में छत और खिड़कियाँ हेलस्टोन्स के वजह से बर्बाद हो गए। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपोज। सो हमारा फोर्थ वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब हिंदी में बेनकाब करना। ओके, एंड इन इंग्लिश इट मीन्स टू शो। सो as an example, they were planning to expose his crimes in front of everyone. So जैसे कि मैंने अभी बताया, expose मतलब बेनकाब करना। So इस सेंटेंस का मतलब है कि वो उसके जुर्मों को सबके सामने बेनकाब करने की प्लानिंग कर रहे थे, राइट? So the next word is frozen. Frozen means iced. एंड इन हिंदी इट्स नोन एज जमे हुए। ओके, फ्रोज़न का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बर्फ़ में बदल दो तो वो फ्रोज़न कहलाता है। सो एज एन एग्जाम्पल, इट्स हार्ड टू चॉप अ फ्रोज़न पीस ऑफ मीट। सो इस सेंटेंस का मतलब है एक जमी हुई मीट को काटना मुश्किल है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। अब हमारा जो दूसरा सेट है वर्ड्स का, उसमें पहला है हेल। सो हेल और हेलस्टोन्स दोनों का मतलब एक ही है। सो आप या तो हेलस्टोन्स बोल सकते हैं या फिर हेल बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब बारिश के साथ बर्फ़ के पत्थर गिरते हैं तो उसे हम हेलस्टोन्स या हेल बोलते हैं। ओके, सो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द हेल हार्म द क्रॉप्स। इसका मतलब है कि फसल को हेल से नुकसान पहुंचा, राइट? सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेग। अब प्लेग का मतलब होता है हिंदी में आपत्ति और इंग्लिश में इसका मतलब है डिज़ास्टर। सो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है, इन एंशियंट टाइम्स प्लेग किल्ड मैनी पीपल। इसका मतलब है कि पुराने ज़माने में प्लेग के वजह से बहुत लोगों की मौत हो गई। सो प्लेग का असली मतलब है जब या तो कभी कभार फसलों में कीड़े लग जाना या फिर किसी भी प्रकार की आपत्ति। ओके, एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर इज़ नोन एज प्लेग। सो द थर्ड वर्ड इज़ लोकस्ट। जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है शलभ, यानी कि इन इंग्लिश इट मीन्स लार्ज ट्रॉपिकल ग्रास हॉपर्स। नाउ वी ऑल नो व्हाट ग्रास हॉपर्स आर, राइट? हम सभी को पता है कि ग्रास हॉपर क्या होता है। सो जब वो ट्रॉपिकल ग्रास हॉपर्स होते हैं, जब बड़े साइज़ के, उनको हम लोकस्ट बोलते हैं। ओके, सो एज एन एग्जाम्पल, द लोकस्ट डिड मोर हार्म टू द क्रॉप्स देन द डाउनपोर। सो इस सेंटेंस का मतलब है कि भारी बारिश से ज़्यादा नुकसान फसलों को लोकस्ट ने पहुंचाया। ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ सोरोफुल। सोरोफुल का मतलब है उदास होना, एंड इन इंग्लिश इट मीन्स सैड और अनहैप्पी। एंड एज एन एग्जाम्पल आई हैव रिटन, एलेक्स वाज सोरोफुल अबाउट हिज डॉग्स डेथ। सो सोरोफुल का मतलब होता है उदास होना, एंड इस सेंटेंस का मतलब है कि अपने कुत्ते की मौत पे एलेक्स बहुत उदास था। ठीक है, ओके, नाउ विल मूव ऑन टू दी समरी ऑफ द पैराग्राफ्स दैट आई हैव रेड। अब हम जितने भी पैराग्राफ्स मैंने पढ़ी है अभी तक, उनके समरी की ओर चलेंगे। सो दिस इज़ द समरी of the paragraphs that I've read.
तो जो पैराग्राफ्स मैंने पढ़ी है उनकी जो समरी है वो यहाँ पर दी गई है. ओके, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. सो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में वी लर्न अबाउट अ फार्मर हुज नेम इज़ लेंचो. हमें एक फार्मर के बारे में जानकारी दी जा रही है जिसका नाम लेंचो है. ओके, सो लेंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली. लेंचो का एक घर था. इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. तो जो कि लेंचो का जो घर था वो एक छोटे से पहाड़ के ऊपर में सिचुएटेड था. ओके, फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स. तो लेंचो के घर से नदियाँ और खेत दिखाई देती थी. लेंचो हैड अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स. लेंचो के पास एक खेत था जिसमें मकई लगे हुए थे और मकई में फूल खिले हुए थे. बट इट नीडेड रेन्स बैडली. लेकिन उन फसलों को बारिश की ज़रूरत थी. ही होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. लेंचो बारिश की उम्मीद में था. लेंचो let me just correct this word. Okay, yeah. Lencho was happy to see huge mountains of clouds in the north. Lencho बड़ी बादलों को देखकर बहुत खुश था. His wife was preparing the dinner. लेंचो की पत्नी शाम का खाना बना रही थी. He told her that God willing it would rain. लेंचो की पत्नी ने लेंचो से कहा कि भगवान की इच्छा से, अगर भगवान की मर्जी है तो बारिश होगी. Soon big drops of rain began to fall. देखते ही देखते बारिश होने लगी. लेंचो went out to feel the rain on his body. लेंचो बाहर जाकर बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने लगा. He was very glad. लेंचो बहुत खुश था. He said that the drops of rain were new coins. लेंचो ने बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर किया. But suddenly strong winds began to flow with large hailstones. लेकिन अचानक बहुत तेज़ तूफ़ान चलने लगी और तूफ़ान के साथ बर्फ़ के पत्थर गिरने लगे. The hail rained for an hour and the fields became white as if covered with salt. 1 घंटे लगातार बारिश के बाद खेत पूरी सफ़ेद हो चुकी थी. मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नमक की चादर से ढकी हुई हो. The crop was totally destroyed. लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. The hail had left nothing. कुछ भी खेत में नहीं बचा था. लेंचो became sad. लेंचो बहुत उदास हो चुका था. He felt that they would go hungry that year. लेंचो को लगा कि उस साल उन्हें भूखे गुजारना होगा. Also they would have no seeds for the next crop. और उनके पास अगले फसल के लिए बीज भी नहीं होंगे. So this is the summary of the paragraphs that I've read till now. तो अभी तक मैंने जितने पैराग्राफ्स पढ़े हैं ये उनकी समरी है. So today's session will end here. आज का जो सेशन है वो यहीं तक होगा. So your homework will be, just a minute. See, you can see there are few questions here, right? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 questions दिए हुए हैं, right? So your first homework is you have to write the answers for these questions. So आपका पहला homework है आपको इन questions के answers खुद लिखने हैं. And your second homework is like how I gave you in the last session. Similarly, in today's session as well, whatever words I have pointed out for you, you have to make sentences of your own. So आज के सेशन में भी मैंने जितने वर्ड्स आपको दिए हैं, there are 9 words. यहाँ पे 9 वर्ड्स हैं. तो आप इन 9 वर्ड्स से आपको अपने सेंटेंसेस क्रिएट करके व्हाट्सएप पे अपलोड करना है. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एट ऑल, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क अस. आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं. ओके, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट सेशन.